हेलो हेलो रोहन सर, क्या हाल है? Ayan, how are you? All, all बहुत good, बढ़िया. all good. So, like here we have Rohan with us. Rohan, apart from being one of my good friends, he is currently a business analyst at Navi and also has worked in companies like Uber. This video solves the purpose of shedding insights on what Rohan's journey has been like, and I hope anyone trying to get into analytics gains value from this. तो रोहन, स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, आप ये जर्नी में कैसे इधर तक आए हो अभी तक? So I would say कि earlier on, even like other folks, like, I used to solve like a lot of DSA questions and solve creating projects on development and all in the beginning, first, second, third year of my college and everything. लेकिन I think कि जो एक अलग से हटके the opportunity was that was through PS2. हम्म। So got the opportunity to work in Uber with as a business analyst over there. So got to know really good insights कि what is exactly analytics क्योंकि उसके पहले हम्म। तक तो I was even not sure कि how is analytics and what people are working who are in analytics are trying to solve. गॉट So इट, उसके हाँ। through I got to learn a lot entirely what exactly they are working, what problems they are solving, and what exactly technologies they are using. So उस हम्म। PS2 program के through I got to know whole 1 year में like I did a complete 1 year of internship with Uber. So and then there was an opportunity like through placement season I got the opportunity to interview with Navi. तो वहां हम्म। से फिर I tried with that only कि हाँ कि analytics is working fine for me like I know कि क्या exactly the numbers basically जो Uber में I got to know कि किन numbers पे they are like working upon the data and everything. So गॉट इट, वहां हाँ। से फिर हाँ मतलब कि that was like his कि हाँ मेरे को analytics sounds to me कि हम्म। हाँ that one should I might be interested in गॉट that. इट, गॉट इट, गॉट। लाइक तो आपकी एनालिटिक्स में एंट्री आपके फोर्थ ईयर में हुई, जो PS2 द इंटर्नशिप विद बिच प्रोवाइड उसके Right. थ्रू। एंड आपके उबर के एक्सपीरियंस के बारे में तो आते हैं कि लाइक हाउ दैट एक्सपीरियंस हेल्प्ड यू इन नावी। बट लाइक लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका। जैसा बता रहे प्लेसमेंट सीजन में नावी का पूरे प्रोसेस कैसा रहा था, एंड आपको क्या लगता है व्हाट वर्कड इन योर फेवर? So I would say कि एक placement window I got from placement unit कि you can हाँ, come for and sit for placements for around a week or so. So हाँ, Navi हाँ। was like first few companies जो initially placement मांगी थी. डे जीरो, हाँ। तो day zero company anything you यस। can say लेकिन हाँ. तो हाँ। फिर it was pretty simple the all the rounds. First was general online assessment. हम्म। So it was like it had two three parts in that like data interpretation questions and uh, probability stats and SQL and ओके। logical reasoning. So it ओके। was like around 1.5 or something like that. हम्म। I don't remember exactly. हाँ, Lekin हाँ। each and every part was time based ओके। and SQL में it was like around two questions they asked, हम्म। medium level questions, one ओके। easy, one medium, and it हाँ। was like around 10 minutes they gave. So that was the first round. OA. And after that, then it was like I got shortlisted for the interview process. So हम्म। interview में mainly they started the first round was that कि although there it was just one round, लेकिन अच्छा। in the first round they हाँ। started with like first की your prior internship experience, what did you work at Uber, like what हम्म। project did you solve, what kind of problems you used to get, हम्म। and फिर वो सब discuss करने के बाद they asked me some 3 4 SQL questions to code upon, ओके। and it was mainly related to window functions and all. ओके। The ओके। rank logic they gave like real world questions only key like you need to identify some fresh trips or repeat trips, how would you हम्म। something like that. So mainly window functions and all. And हाँ। post that they asked me some root cause analysis or case study हम्म। you can tell. So I was given one problem statement. I need to like drill it down key what could be the possible root cause for that. ओके। And हम्म। उसके थ्रू मतलब it was like a cross question kind of session की I will मतलब answer few part then I would like ask की is it the right way or not, so kind of that. यस। And they followed up with that another case study ongoing with ओके। that only. और उसके बाद then they asked me some probability questions, 3 4 questions like don't need to write it down, just कि हम्म। 2 3 dice roll किए what is the probability of getting this, अच्छा। and so like they asked basically 11 12 based theorem kind of questions and all. अच्छा। So ओके, हाँ। इसके बाद then last में they asked some basic HR questions, your strengths, weakness, why do हम्म। you want to choose Navi. So I was like kind कि मेरे को fintech में जाना है तो they were हम्म। like कि ठीक है बढ़िया है. So ओके। that was it mainly the round for that. It was गॉट, cool हाँ। around, it lasted for around 15 minutes kind of that. So yes. 50 मिनट्स, ओके। Around फिफ 45 50 50 फोर्टी minutes. फाइव टू 50 मिनट्स।
नाइस नाइस। तो ये जैसे आप बता रहे ओए में डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसे क्वेश्चंस थे, डेटा इंटरप्रिटेशन से बेसिकली आप किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन एज इन की लाइक चार्ट्स गिवन है, यू आर ओके, गिवन अ टेबल ऑफ समझ नंबर्स गया। की, हाँ, हाँ उस तरीके के क्वेश्चन गॉट कि इट व्हाट गॉट इट गॉट इट। प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हाँ लाइक दैट। एंड लाइक पूरे ओए एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्वल पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं कि हाँ मेनली, हाँ इंटरव्यू मतलब नॉट एग्जैक्टली नो, लेकिन इंटरव्यू में तो मेनली दे वर आस्किंग सीक्वल ओनली, क्योंकि उनको, सीक्वल। क्योंकि राइट नाउ हाँ सीक्वल में यू शुड बी थरली गुड एट इट। तो एंड लाइक हाँ सीक्वल। आपका जैसे आप बता दें कि उबर के एक्सपीरियंस में सीक्वल काफ़ी यूज़ हुआ तो उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, बट लाइक अपार्ट फ्रॉम इट आपको सीक्वल की प्रैक्टिस आपने कैसे करी थी, या फिर कोई अगर सीक्वल की प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? राइट, सो सीक्वल इज दैट कि मैंने पहले काफी डीएसए कर रखा था, तो वहां से ओके। थोड़ा लॉजिकल डेवलपमेंट हो गया था कि किस तरीके से फेल्स कंडीशंस, केसमेंट कंडीशंस, किस हाँ, तरीके से फंक्शंस डिफाइन होते हैं। तो ठीक वहां है। से उसके ऊपर मेनली व्हाट यू कैन डू इज दैट कि लीड कोड 50 का एक सीक्वल के सेट ऑफ क्वेश्चंस है। तो ओके। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, उसमें पूरा उन्होंने दे हैव कवर्ड एवरीथिंग स्टार्टिंग हाँ। फ्रॉम बेसिक्स टिल विंडो फंक्शंस, और हम्म। सब कुछ उन्होंने कवर कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। उसके अलावा इफ यू वांट टू practice much more, you can go to hacker rank or ओके, solve questions some over there. I think that should be sufficient. गॉट इट गॉट इट। तो लाइक अब इन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, व्हाट डू यू थिंक कि एनालिटिक्स वालों को आना आना ही चाहिए, मतलब टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इंटरव्यू या टू बी प्रिपेयर्ड टू क्रैक सच अ रोल, क्या क्या टेक्निकलिटीज उनको पता होनी ही चाहिए? तो एनालिटिक्स में आई विल से कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डेटा तो निकालना पड़ेगा ही, तो डेटा क्वेरी करने के लिए यू नीड टू नो सीक्वल। ओके। और सीक्वल के अलावा अब उसको प्रेजेंट करने के लिए इन इजियर वे टैबलू की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनी टूल, टैबलू हो या लुकर स्टूडियो हो, हम्म। कुछ भी एक बेसिक सा टूल यू नीड टू नो कि कैसे ओके। दिखाना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जी शीट्स, एक्सेल बोल लो कि गूगल हम्म। शीट्स में पिवट कैसे करते हैं, उसमें भी कुछ कुछ सीक्वल आप मतलब आप कोड वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हो। उसमें भी आप हम्म। प्रेजेंट कर सकते हो बेसिकली डेटा, आपको फॉर्मूलाज वगैरह जो भी होते हैं गॉट इट। ये हाँ। आना चाहिए तो बेसिकली। और पाइथन अगर आपको, डिपेंड्स अपॉन टीम टू टीम, लेकिन आप पाइथन में आना चाहिए। तो हाँ। मेनली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स आई वुड से सीक्वल, पाइथन, हम्म। गूगल शीट्स, एक्सेल ले लो, और यहाँ पे कोई भी टूल ले लो विजुअलाइजेशन का, लाइक टैबलू और लुकर ओके, काइंड ऑफ। आई थिंक दैट समझ इज गया। सफिशिएंट। गॉट इट गॉट इट। तो लाइक मेरा ये टेकअवे है कि आपका टेक्निकल एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ सीक्वल काफ़ी वो सब डिसेंट लेवल पे रहा होगा, बट मान लेते हैं कि आपके जैसा ही कोई दूसरे का भी टेक्निकल एस्पेक्ट में सब सेम है स्किल लेवल, बट आपको इंटरव्यू में क्या डिफरेंशिएट करा, मतलब आपके हिसाब से व्हाट हेल्प यू स्टैंड आउट इन द इंटरव्यू? वन थिंग विच आई थिंक कि जो थोड़ा स्टैंड आउट करा होगा, मुझसे कि हम्म। थोड़ा कॉन्फिडेंट तो था मैं ओके। कि 6 मंथ का प्रायर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, ओके। तो कुछ तो ठीक ठाक सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो हाँ। हाँ मतलब मैं काफी कॉन्फिडेंट था इंटरव्यू प्रोसेस में, जो भी वो क्वेश्चंस हम्म। दे रहे थे आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के हाँ हम्म। सॉल्व कर देते हैं, डिस्कस कर उड़ा के। तो ओके। मैं काफी इंटरेक्ट कर रहा था उनके साथ कि हाँ। क्या यही सही है, ऐसा हो सकता है, इस क्वेश्चन में हम्म। ये प्रॉब्लम है, ये रूट कॉज हो सकता है। ओके। तो हाँ आई थिंक कि वही मेनली था, मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ। जो है सही है, और बस ओके। फिर बताते चले जाऊंगा। मतलब मुझे जितना पता है कि एनालिटिक्स में 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे, एंड मतलब आपका एक ही राउंड में हो गया था। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि मतलब उन्होंने ये कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपको जल्दी शॉर्टलिस्ट या सिलेक्ट कर लिया होगा? आई थिंक एनालिटिक्स में मेनली एक ही राउंड हुआ था, बाकी सारे लाइक हाँ। क्रेडिट रिस्क, एसडीज और ओके। उन सब में दो डबल डबल या थ्री थ्री राउंड हो रहे थे। अच्छा, गॉट एनालिटिक्स में इट। तो आई थिंक एनालिटिक्स में एक ही था। एक ही राउंड गॉट था। इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी आप जूनियर से बात करते हैं, या फिर कोई भी अभी प्लेसमेंट सीजन में जाने वाला है मान लेते हैं, वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइक मान लेते हैं उनके पास अभी 3 से 4 महीने हैं, आप उनको क्या एडवाइस करते हैं कि अभी दे कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ देयर टाइम एंड मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी? हाँ तो सही क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आई विल से कि अगर मोस्ट लाइकली अगर वो अभी प्लेसमेंट सीजन में जाने वाले हैं, तो अगर वो ऑलरेडी PS2 अगर हो, नॉट श्योर, हम्म। अगर PS2 ऑलरेडी अगर ऑनगोइंग चल रहा है और ऑलरेडी अगर एनालिटिक्स के बैकग्राउंड का ही PS2, हाँ। तो ऐसे कि बेस्ट फिर तो जो भी वहाँ पे सीक्वल तो ऑलरेडी अच्छा थरोली प्रिपेयर हो ही जाएगा ओके। उससे। हम्म। तो उसके अलावा बस ये है कि उसका जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है कि सिर्फ सीक्वल नहीं, उसके ऊपर की जो मेन बिजनेस प्रॉब्लम्स यू आर सॉल्विंग ओवर देयर, उसके पीछे ओके। का क्या मोटिव है, गॉट क्या इट वाई है उसके पीछे का बेसिकली। गॉट जो इट। हाँ। मेट्रिक्स के लिए यू आर वर्किंग अपॉन वहाँ पे XYZ कंपनी के लिए, तो वहाँ मेट्रिक्स हाँ। के पीछे का लॉजिक क्या है, मेट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हम्म। एज सिंपल एज दैट कि एक कंपनी के इंस्टॉल्स कितने हैं, वो इंस्टॉल्स कांस्टेंट क्यों हो रहे हैं, ड्रॉप क्यों हो रहा है, तो पीछे का बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। तो वो सब अंडरस्टूड। हाँ। तरह की सीक्वल तो क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा, तो ये सब चीजें प्रिपेयर करके
ये सब चूंकि इंटरव्यू में काम आ जाती है कि अगर वो हम्म। एक क्वेश्चन आपको रूट कॉज दे रहे हैं या केस स्टडी दे रहे हैं, यस। तो ये सब यू कैन डिस्कस अपॉन। और जो अगर अभी एनालिटिक्स में नहीं है और एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, आई थिंक वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो थ्रू लीड कोड 15, और a lot of videos also available YouTube पे कि केस स्टडी के ऊपर, रूट कॉज एनालिसिस ओके। के ऊपर। हाँ। एक वो 100 जीएफजी पजल्स वाला भी एक है, मतलब पीपल आस्क समटाइम्स कि वो हम्म। फिक्स है जीएफजी का 100 पजल्स, ओके। तो समटाइम्स इंटरव्यू माइट आस्क। तो ये सब आई थिंक यू कैन, इफ यू कैन प्रिपेयर दैट, आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। गॉट इट मतलब या तो किसी के पास अभी ऑलरेडी एक इंटर्नशिप हो एनालिटिक्स के फील्ड में या कोई और फील्ड में, बट वो उस कंपनी में एनालिटिक्स कैसे वर्क करते हैं, उनके मेट्रिक्स कैसे होते हैं, रीजनिंग, वो सब के बारे में और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या फिर अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई इंटर्नशिप नहीं है तो दे कैन एटलीस्ट बिल्ड देयर टेक्निकल कैपेबिलिटीज इन राइट। अभी। और व्हाट वुड यू रिकमेंड देम टू बी एबल टू compete विद समवन जिसके पास इंटर्नशिप होगी? लाइक एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर आपके नावी के इंटरव्यू में बहुत मेजर पार्ट रहा था आपके उबर के एक्सपीरियंस का, ठीक है, बट फॉर एग्जांपल इफ यू डिडंट हैव अ उबर एनालिटिक्स इंटर्नशिप, बट यू वुड हैव फिगर्ड आउट कि मुझे तो एनालिटिक्स में ही जाना है, तो डू यू थिंक एट दिस स्टेज, लाइक आफ्टर ग्रेजुएटिंग, आफ्टर वर्किंग इन नावी, कि आप कुछ ऐसा कर सकते थे टू बी एबल टू compete एट द सेम लेवल विद समवन हु हैज एन इंटर्नशिप इन द रिस्पेक्टिव फील्ड इन एनालिटिक्स? हाँ हाँ, डेफिनेटली आई थिंक यू कैन कम्पीट, क्योंकि डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, बस इंटर्नशिप आपको एक ओके। एडेड एडवांटेज दे रहा है कि आप जल्दी से आप रियल हाँ। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख पाओगे। गॉट इट। दैट्स इट। क्योंकि हाँ। इंटर्नशिप के बेसिकली थ्रू आप टेक्निकल स्किल्स अपने इंप्रूव कर रहे हो, तो अगर आप विदाउट इंटर्नशिप भी अगर आप ये सब इंप्रूव कर लो, सीक्वल और क्या क्या टूल्स हैं, डैशबोर्ड अंडरस्टूड। कैसे बनाते हैं, गूगल हाँ। शीट के क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे पिवट करते हैं, तो अगर ये सब चीजें ऑलरेडी सीख लोगे तो आप, यू आर, आई थिंक यू आर एट द सेम लेवल ओनली। तो उसके थ्रू चूंकि अंडरस्टूड। ये आस्क दिस ओनली, मतलब जो भी इंटरव्यूअर है हाँ। वो यही पूछेगा, तो इनडायरेक्टली अगर सीक्वल आप सॉल्व कर पा रहे हो, आई थिंक दैट हाँ। शुड बी फाइन। या तो आप इंटर्नशिप के थ्रू सीक्वल सीखो या अलग से प्रैक्टिस करके सीखो, वो तो ओके। इतना डिफरेंस लाएगा नहीं। समझ तो गया इस समझ तरीके गया से। समझ गया। तो लाइक आई थिंक ये पार्ट इज प्रीटी मच कवर्ड कि हाउ समवन कैन बेस्ट प्रिपेयर फॉर सच काइंड ऑफ अ रोल एंड व्हाट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज लाइक। कमिंग टू योर एक्सपीरियंस एट उबर, लाइक आई एम प्रिटी श्योर कि आप जैसे इंटर्नशिप करी आपने एनालिटिक्स में उबर में, आपके जैसे और भी काफी लोग होंगे जिन्होंने अच्छी अच्छी कंपनीज में एनालिटिक्स में इंटर्न करी होगी, बट नॉट एवरीवन had the same takeaways या फिर had the same amount of learnings from their respective experiences. आपने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली आपको लगता है कि लाइक योर एक्सपीरियंस इट एट उबर हेल्प्ड यू वे बेटर, या फिर आपने कुछ ऐसे करा हो टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस? तो हाँ, मतलब कुछ कुछ सिनेरियो थे, मतलब जहाँ पे आई थिंक कि उसने मेरी लर्निंग्स बहुत इंप्रूव करी हो। लाइक वन ओके। ऑफ द स्टेजेस पे मैंने कुछ एक बार प्रॉड में ऐसी चीज पुश कर दी थी टेबल्स के लॉजिक में, हाँ हाँ। जिससे वो बहुत सारे डुप्लीकेट्स आ गए थे, अराउंड कुछ 1.5 मिलियन डुप्लीकेट्स आ गए थे 1 वीक में। ओके। तो फिर वो जब मेरे को वो इशू दिखा था, तो मैं मैनेजर मेंटर से डिस्कस किया था, तो उसके पीछे उन्होंने कहा कि कुछ देखो क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो वहां में पूरा का पूरा विंडो फंक्शन मेरे को सीखना पड़ा, किस हाँ। तरीके से रैंकिंग लॉजिक होता है, डेंस हम्म। रैंक होता है, क्या होता है। और वो हाँ। एग्जैक्टली क्वेश्चन मेरे को इंटरव्यू में पूछा था कि ओ डेंस रैंक रो वाह। नंबर, हाँ। इसकी बेसिस पे ही उन्होंने क्वेश्चन पे फ्रेम किया था। तो ओके। आई थिंक इस तरीके की काफी सारे वो सिनेरियोज डेवलप हुए थे मेरे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में, कि हाँ हाँ। प्रायोरिटाइज कैसे करना है, क्योंकि यू गेट टू वर्क अपॉन अ लॉट ऑफ टास्क फ्रॉम ऑल टुगेदर डिफरेंट टीम, कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस आएगा, कुछ नेटवर्क एनालिटिक्स आएगा, कुछ अलग टीम्स हम्म। आएगा। तो हम्म। उनको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, किस तरीके से उन्हें इनसाइट शेयर करने की, भाई ये प्रॉपर रूट कॉज यही इशू है, यही लॉजिक है कि ये इसके थ्रू ही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना है। तो गॉट आई इट। थिंक ये सब चीजें ने धीरे धीरे काफी हद तक फ्रेम कर दिया था कि किस तरीके से हम्म। बेस्ट पॉसिबल, किस तरीके से दिखाना चाहिए एनालिटिक्स को, हम्म। मतलब क्या शेयर करना है, नहीं करना है। तो आई थिंक हम्म। हाँ, मतलब ऊबर ने काफी हद तक फिगर आउट गॉट करके इट। बता दिया था कि हाँ। किस तरीके से हाँ। इंडस्ट्री में एनालिटिक्स काम करती है। तो समझ गया। हाँ लाइक ऑन अ स्टूडेंट लेवल आई थिंक हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि टू जस्ट गेट योर हैंड्स एज डर्टी एज पॉसिबल, गेन द राइट। एक्सपोजर्स और ट्राई टू लर्न फ्रॉम ऑल द एक्सपीरियंसेस वेदर गुड बैड अगली। हाँ, आई थिंक कुछ गलत एक्सपीरियंस होता है तो ज्यादा लर्निंग करने को यस मिलती यस। है, मेरा तो ये है। डेफिनेटली। तो चलो टॉकिंग हाँ। अबाउट लाइक गलत एक्सपीरियंसेस ही, आपका जैसे थ्रू आउट योर 5 years of college, if you would have the chance to do something differently, right now I know कि all ended up well, अभी आप नावी में है और analytics in your preferred field, but something which you wish कि you would have known before, let's say if you were in your third year, या आप कुछ ऐसा कर सकते थे which would have मैक्स इवन मोर मैक्सिमाइज योर चांसेस की अपॉर्चुनिटीज की, तो ऐसा कुछ है जो आप सजेस्ट करेंगे सब स्टूडेंट्स को? राइट। मतलब मेरे को एक लगता है कि टॉक टू मोर पीपल इन द इंडस्ट्री, कि जो ओके। ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे,
कि अगर मैंने कभी किसी एनालिटिक्स वाले बंदे से बात नहीं की जो ऑलरेडी काम कर रहा हो कि वो एक्जैक्टली हम्म क्या सॉल्व कर रहा है, हम्म किस चीज को यूज कर रहा है, क्या टेक्निकल ओके स्किल्स होती हैं। हम्म तो अगर इफ यू आर एबल टू टॉक मोर पीपल हर इंडस्ट्री में, तो यू गेट टू नो कि हाँ क्या क्या हम्म डिफरेंट पाथ्स हैं अवेलेबल, किसमें यू कैन ट्राई अर्ली ऑन। तो यस वो एक मैं सोचता हूँ कि वो करा जा सकता था। दूसरा, अगर ओके इफ यू आर ट्राई टू गेट मोर इंटर्नशिप्स, जैसे मैं तो फाइनल ईयर में ही सीधे मैं एट इंटर्न, उसके हाँ पहले अगर इफ यू आर इंटर्निंग तो थोड़ा और हेड स्टार्ट मिल पाता है आपको यस कि यस यस डेफिनेटली और क्या मतलब क्या चीजें हैं यस बेसिकली इंडस्ट्री में। वेल और हाँ हाँ तो हाँ। नहीं नहीं आप बोलिए लास्ट क्या बोल और रहे थे मेरे को लास्ट में को ये लगा था कि हाँ, अगर मेरे को पहले से पता होता कि सीक्वल करना चाहिए, क्या क्या मतलब, और क्या गूगल शीट्स या टैबलू या डैशबोर्डिंग किस तरीके से करते हैं, तो वो मैं और पहले से सीख पाता कि हाँ दिस इज अ टेक स्टैक है, हाँ ये पाइथन इस तरीके से। तो यही आई थिंक 3-4 गॉट पॉइंट्स इट है। समझ गया लाइक growing your network and trying to get internships by reaching out to people cold mailing or getting राइट। to know the industry better that would be something to take away got it परफेक्टली। Rohan and abhi like let's assume ki you are on a call with your junior so is there anything more which you would like to share to him or her जो उसे शायद हेल्प कर जाए वन थिंग आई कैन से इज दैट कि सब चीजें इनिशियली ट्राई करना चाहिए, ओके कि योर ट्राई एज डेवलपमेंट एज वेल, ट्राई एनालिटिक्स एज वेल, ट्राई प्रोडक्ट एज वेल, कि उसके हम्म थ्रू ही यू विल गेट टू नो कि क्या क्या मेन इंटरेस्ट किस में स्पेसिफिकली। हम्म तो जैसे कि मेरे को स्पेसिफिकली एनालिटिक्स एक्सपीरियंस सिर्फ इंटर्नशिप के थ्रू मिल पाया, उसके पहले आई डेंट गेट द अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में। हम्म लेकिन हम्म इस फील्ड में मेरे को डीएसए और इसका ऑलरेडी आइडिया लग गया था कि हाँ हम्म शायद डीएसए इतना नहीं मेरे लिए काम करेगा आगे। लेकिन ओके हाँ, तो वही ट्राई एन नंबर ऑफ थिंग्स, सब ओके में डू योर हैंड, हम्म और फिर इवेंचुअली यू गेट टू नो कि क्या राइट है फॉर यू। गॉट इट दिस इज द ओनली रिकमेंडेशन आई कैन गिव। गॉट बाकी इट तो रोहन जितना लाइक ये तो लाइक आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर इफ समवन फॉलोज इट इट वुड बी वेरी गुड बट अभी लाइक करेंटली व्हाट्स योर डे इन द लाइफ एट नावी एज अ डेटा एनालिस्ट लाइक सो राइट नाउ it has been just around 1.5 months, लेकिन ओके काफी it was like pretty challenge not challenging, or like it was like a lot of, हाँ मतलब you have to take, I think you have to take ownership from very start, या हम्म कि तुम्हें काफी सारे कुछ प्रोजेक्ट्स में you will start working upon, you have हम्म to understand a lot of business context कि एकदम से क्या मतलब क्या exactly metrics we are tracking, क्या exactly मतलब basically it's a fintech company तो we provide loans and all, तो क्या exactly metrics key metrics हैं, मतलब we have to understand everything from right the from first 3-4 days कि क्या क्या काम है। तो यस मतलब इंपॉर्टेंट थिंग है उसे कि ओनरशिप बहुत स्टार्टिंग से लेनी पड़ती है कि ओके ये डिलीवर किस तरीके से करना है, क्या करना है, आस्क द राइट क्वेश्चंस जो स्टेक होल्डर्स हम्म हैं कि हम्म इज दिस द राइट वे, और हम्म बस यही करते करते अभी ये फिगरिंग आउट की ओके क्या होना चाहिए। तो चलो काफी दैट चैलेंजिंग और काफी हाँ फन है। चलो दैट्स ग्रेट टू नो रोहन एंड विशिंग द वेरी बेस्ट अभी आगे आगे की जर्नी के लिए भी अब लाइक आई होप कि the students which might be preparing for the placements या फिर anyone who wants to explore analytics as a subject itself finds this helpful like unless you have to say something for the ending of the call we can call it a wrap I think थिंक प्रीटी मच काफी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन तब भी इफ यू फील कि कुछ अगर यू वांट टू आस्क, फील फ्री टू रीच आउट, okay either through Ayan or directly you can message me, जो भी। तो हाँ कुछ भी हो, बाकी तो एवरीथिंग आई से चिल करो, एंजॉय करो। चलो ग्रेट टू नो वन थैंक्स अ लॉट आपके टाइम के लिए एंड मिलते हैं जल्द